Hello, guys. Welcome to another episode of Prakash Gadgil Tour of the best hospitals in Mumbai. Please do subscribe and share with your loved ones for spreading awareness. Thane, the beautiful city of Maharashtra. Located in this beautiful town is the Devdar Hospital situated in the eastern suburb, Geet Ganga building opposite Ice Factory. Devdar Hospital is one of the oldest functioning maternity home and gynecology hospital. Built in the year 1969, Devdar Hospital has provided the whole of Thane and people coming from far away the best of treatment in the field of maternity, surgical and endoscopy. Operating for more than 53 years as of 2023, Devdar Hospital has treated thousands of patients and with effective care and guidance have helped many mothers to deliver their babies in the safest way possible. तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे देवदर हॉस्पिटल एंड देखेंगे कि कैसे देवदर इज द बेस्ट इन व्हाट इट डज। देवदर हॉस्पिटल 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक तरफ एक बिल्डिंग के 3 फ्लोर्स ऑक्यूपाइड है विद डिफरेंट सेक्शंस एंड एक ऑपोजिट में है देवदर क्लिनिक जहां डॉक्टर्स अपने ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के पेशेंट्स का चेकअप करवाते हैं। लेट्स गो इन देवदर क्लिनिक फर्स्ट। देवदर क्लिनिक इज वेल इक्विप्ड विद सिटिंग स्पेस फॉर पेशेंट्स एंड अ रिसेप्शन इन मिडल जहां आप जाकर अपनी पर्टिकुलर डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आफ्टर द रिसेप्शन एरिया हम गए अंदर और अंदर एक्चुअली पैथोलॉजी सेंटर है जहाँ एक पैथोलॉजिस्ट बैठ के सब पेशेंट्स के ब्लड एंड टिश्यू सैंपल्स टेस्ट करते हैं टू डिटेक्ट एनी डिजीज और इन्फेक्शन। एंड वी मूव अहेड टू डॉक्टर अभिजीत देवदर्स क्लिनिक। Dr. Abhijit Devdar has been a practicing gynecologist and obstetrician since 1996. इनके कई सारे पेपर्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किए गए हैं। इनकी स्पेशलिटी है इनफर्टिलिटी एंड एंडोस्कोपी। Now moving to Dr. Lalita Devdar's clinic. Lalita Devdar is one of the founding members of Devdar Hospital. Having completed her MBBS with the President of India's medal in 1964, she started practicing at Devdar Hospital in Thane from 1969. Now moving to Dr. Aditi Devdar's clinic. Aditi Devdar is the chief in charge of hospital administration at Devdar. Having completed her MBBS, she has been practicing in Devdar. इसके बाद हम बढ़ रहे हैं सोनोग्राफी रूम की तरफ। सोनोग्राफी रूम में डॉक्टर्स अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस के माध्यम से पता करते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी के पेट में जो बच्चा है वो हेल्दी है और उसकी ग्रोथ सही तरह से हो रही है कि नहीं। Now moving from the clinic to the main building of Devdar Hospital. एंट्रेंस पे आपको एक बोर्ड मिलेगा जो आपको प्रॉपर्ली समझाएगा कि देवदर हॉस्पिटल में क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है। मूविंग टू द फर्स्ट फ्लोर, यहाँ एक बड़ा रिसेप्शन एरिया है जहां आप अपने क्वेरीज और अपॉइंटमेंट्स सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मूविंग टू द राइट साइड ऑफ रिसेप्शन, यहाँ हॉस्पिटल्स के सब साइंस एंड रूल्स लिखे गए हैं फॉर एवरीवन टू रीड एंड फॉलो एज पर एंड ऑल्सो हॉस्पिटल का मैप दिया गया है। मूविंग अहेड, सबसे पहले है डॉक्टर्स रूम। या डॉक्टर कैन लुक इनटू पेशेंट्स एंड स्टाफ एज पर नीडेड। Inside doctor's room, there are all the certifications and validations which are given to only properly functioning hospitals like Devdar itself. Moving from doctor's room to luxury rooms, available for all patients so that they can get better and heal in peace and comfort. Moving to the labor room. In this room is where the magic happens. In this room, creation finds a way with the help of brilliant doctors at Devdar. All the babies in Devdar are delivered in the labor room. इन बेड्स को डिलीवरी टेबल कहा जाता है। हम अभी खड़े हैं लेबर रूम के वाइट जोन में। यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन जब लेबर पीरियड में जाते हैं तब द डॉक्टर्स ऑफ देवदर हेल्प देम टू डिलीवर द बेबी एज कंफर्टेबली एंड सेफली एज पॉसिबल। राइट बिसाइड द डिलीवरी टेबल है बेबी वार्मर। जब एक बच्चा पैदा होता है उसे बेबी वार्मर में रखा जाता है ताकि बच्चे को सही मात्रा में गर्मी मिले जैसे उसे अपनी माँ के पेट में मिलती थी। Now we move to the operation theatre of Devdar, which is connected to labor room. The operation theatre has access to red zone. Red zone basically उन patients के लिए जिनके cases complicated हो या किसी तरह की threat हो माँ या बच्चे के लिए। In the OT there is अलग अलग तरह की advanced machines जो इस्तेमाल होती है to ensure safe operation. Now here is the autoclave machine. हमारे पिछले वीडियो में आपने autoclave machines के बारे में देखा होगा। अगर नहीं देखा तो चेकआउट कीजिए हमारे पिछले वीडियोस। Autoclave machines basically use होते हैं to completely clean and keep the equipments used in operation theatre thoroughly hygienic. Right outside OT is cylinder storage area. यहाँ सब तरह के सिलेंडर स्टोर किए जाते हैं properly to ensure safety. Now moving to recovery room, यहाँ सब पेशेंट्स अपने डिलीवरीज के बाद अपने बच्चों के साथ स्टे कर सकते हैं in order to recover and heal faster. Right next to recovery room is the duty room.
यहाँ सब स्टाफ रेडी होता है टू गेट ऑन देयर रिस्पेक्टिव पोस्ट। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड फ्लोर, यहाँ के ड्यूटी रूम में न्यू बॉर्न बेबीज को स्पॉन्जिंग किया जाता है एंड उन्हें ग्रूम किया जाता है। एक्सेप्ट फॉर दैट यहाँ जनरल वार्ड है जहाँ पेशेंट्स रेस्ट करते हैं एंड हील होते हैं। नाउ मूविंग टू थर्ड एंड फाइनल फ्लोर, यहाँ डी-आर्ट फर्टिलिटी सेंटर है। ये एक इनिशिएटिव है फ्रॉम देवदर हॉस्पिटल टू हेल्प कपल्स हु आर नॉट एबल टू बेयर चाइल्ड ऑन देयर ओन। फर्टिलिटी centers assist couples and sometimes individuals who want to become parents but for medical reasons have been unable to achieve this goal via the natural course. देवदर हॉस्पिटल में एक लाइब्रेरी भी मौजूद है। Let's have a chat with the staff of देवदर and ask them some questions of our own. हॅलो मॅम, जेव्हा छोटे शिशु जन्माला येतात तेव्हा ते सगळेच सारखे दिसतात, तर तुम्ही काय काळजी घेता की त्या बाळांची अदलाबदल होऊ नये? हॅलो, असा प्रसंग असतो की एक पेशंटचं बाळ दुसऱ्या पेशंटकडे एक्सचेंज होऊ नये म्हणून आपण डिलिव्हरी झाल्यावर बाळाच्या पायाचे ठसे आणि बाळाच्या हातावरती मनगटावरती त्याचा नावाचा टॅग लावला जातो आणि त्या टॅगवरती बाळाच्या आईचं नाव आणि ब्लड ग्रुप लिहिलेला जातो। ते बाळाचे ठसे हे बाळाची ओळख असते आणि बाळ हे आईच्या बरोबरच रूममध्ये ठेवलं जातं, आईपासून वेगळं केलं जात नाही। काही कारणास्तव बाळाला जर बाहेर न्यायचं असेल, उदाहरणार्थ आंघोळीसाठी न्यायचं असेल, तर ते हॉस्पिटलच्या स्टाफ मेंबरनीच घेऊन जातात आणि परत बाळाच्या आईजवळ आणून ठेवतात। थँक्यू। हेलो मैम, देवदर हॉस्पिटल में अलग अलग तरह के प्रेग्नेंट वुमेन आते हैं और सबके अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होंगे ही, तो कैसे आप ट्रीट करते हैं पेशेंट को इन डिफरेंट केस सिनारियोज? देखिए, हमारे पास ना अलग अलग टाइप का प्रेगनेंसी का पेशेंट आता है, सबको हम ट्रीट करता है, वो अलग अलग मैनेजमेंट का हिसाब से करते हैं। हम लोग ट्रेंड क्वालिफाइड डॉक्टर्स का प्रेजेंस लेते हैं और प्रेगनेंसी विथ डायबिटीज़, प्रेगनेंसी विथ बीपी, ट्विंस प्रेगनेंसी, पहले 2 बार 1 बार प्रेगनेंसी सिसेरियन हो चुका है, पेशेंट एनीमिया रहता है, पेशेंट थायराइड का प्रॉब्लम रहता है, फिर प्रेशियस प्रेगनेंसी रहता है। प्रेशियस प्रेगनेंसी मीन्स IVF है, टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी ऐसा रहता है। लेकिन हमारे पास स्पेसिफिक मैनेजमेंट इसमें, तो अभी समझो एक एक्टोपिक पेशेंट आया, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, मॉडर्न ट्रीटमेंट है, फिर वो एक्टोपिक के लिए हम लोग लेप्रोस्कोपी ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। प्रेगनेंसी और जो डिलीवरी के लिए हमारा डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैंडल करता है। वो हमको हमारे हॉस्पिटल को अभी 53 इयर्स में ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का सेवा देते हैं। हमारे सभी स्टाफ वेल एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड है। वैसा ही हमारा 24 आवर्स हमको गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रहता है। डिलीवरी, सर्जरी हमारे पास अच्छा लेबर रूम आणि OT ऑपरेशन थिएटर रहता है। हमारा एम हेल्थी मदर एंड हेल्थी बेबी है। थैंक यू। देवदर हॉस्पिटल पिछले 53 इयर्स से फंक्शन कर रहा है एंड ये महाराष्ट्र का वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड हॉस्पिटल्स में से एक है। Kudos to Dr. Lalita Devdar and the whole team of Devdar for bringing world-class facilities under one roof. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके करीबी लोगों के साथ, ताकि सबको पता चले कि एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में आखिर होता क्या है और वो कैसे ऑपरेट करते हैं। Until next time, take care, be safe. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।